हाँ जी प्लस 2 की है। उस तो बाद ਆਪਾਂ MBBS करनी है। MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं हैगी, ਈਵਨ ਕਿ ट्यूशन फीस भी बिल्कुल जीरो है, स्कॉलरशिप ਤੁਹਾਨੂੰ मिलती है। मैं स्कॉलरशिप बारे नहीं दसूंगा, जस्ट मैं कंट्री के बारे दसूंगा किहड़ी कंट्री है जिस कंट्री के विच तुसी MBBS कर सकते हो। ट्यूशन फीस उसकी घट है, कंपेयर आप दूजी कंट्री नाल करांगे। आईलैट्स की जरूरत, नीट की एग्जाम की जरूरत नहीं हैगी। वो किहड़ी कंट्री है आओ तुहानूं वीडियो दे विच दसदे हैं, बने रहो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टोटल 4 टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक होगा कि आप इंडिया में MBBS क्यों नहीं करेंगे, इंडिया में मेडिसिन की स्टडी क्यों नहीं करेंगे, आपको रोमानिया ही क्यों सुजेस्ट किया जाएगा। सेकंड है रोमानिया एडमिशन प्रोसेस, उसमें हम कवर करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो थर्ड टॉपिक हमारा जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो होएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे जब आप रोमानिया में MBBS या मेडिसिन की स्टडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। चौथा और सबसे लास्ट टॉपिक यही होगा कि वाई रोमानिया, मैं क्यों ना अदर यूरोप की शेनिगन कंट्रीज में अप्लाई करूं, क्यों ना मैं इटली में अप्लाई करूं, क्यों ना मैं फ्रांस में अप्लाई करूं, क्यों ना मैं पोलैंड में अप्लाई करूं। तो इन सब का कंपैरिजन हम आपको बताएंगे इस वीडियो के थ्रू, तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि आप इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना, आपने MBBS रोमानिया में ही क्यों करने जाना। हुण तुसीं MBBS जिहड़ी करनी है स्टडी अपनी ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ MBBS ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੀ ਸਿਰਫ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-10% ਹੈ, वैसे 90 की 90% यूनिवर्सिटियां होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, नो डाउट। पर प्रॉब्लम की है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ट्यूशन फीस है ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11-12 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ MBBS ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ MBBS ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਫਰੋਮ ਲੰਡਨ, ਡਿਗਰੀ ਫਰੋਮ UK ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਕੋਸਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਟ, ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲਾ +2 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
तो जैसे आपको सर ने बताया कि हमें इंडिया में ही नहीं बल्कि रोमानिया में एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो अफोर्डेबल कंट्री है। वहाँ पर हमें नीट का एग्ज़ाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी का कोई भी मेडिकल का एग्ज़ाम होता है जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं। इतना इजी है रोमानिया में एडमिशन लेना। तो अभी मैं आपको जो सेकंड टॉपिक जो है उसके बारे में बताऊंगी, वो था हमारा रोमानिया का एडमिशन प्रोसेस। कैसे हम जो है रोमानियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो थर्ड टॉपिक जो होगा वो होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो सेकंड टॉपिक पर आते हैं, तो वो है कि सबसे पहले हम जब यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें चेक करना चाहिए कि वाकई ही हम एलिजिबल हैं। जो उन्होंने जो ग्रेजुएशन के जहाँ हमारे लास्ट 12th के स्कोर मांगे हैं, क्या हमारी स्टडी के स्कोर उसके इक्वल हैं। जब उन्होंने जो भी, जैसे आईएलटीएस का एग्ज़ाम जो कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास लास्ट एजुकेशन इंग्लिश में है तो आपकी एमओआई लग जाएगी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आईएलटीएस पीटी मांगती तो हैं, बट उसके साथ ये कहती है कि अगर आपने लास्ट 4 इयर्स की स्टडी, मीन्स आपने 9th 10th 11th और 12th, ये 4 साल, ये नहीं है कि आपकी 12th ही अकेली इंग्लिश में होनी चाहिए, आपने ये 4 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, आपकी लास्ट जो एजुकेशन थी वो आप इंग्लिश मीडियम में की हुई है, तो आप इसमें विदाउट आईएलटीएस और पीटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक किया किसी भी यूनिवर्सिटी का, आपको लग रहा है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले स्टेप होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने फॉर्म फिल करना है उनका, उसमें आपने जो अपनी डिटेल है, आपके मार्क्स हैं, अपने वो अपलोड करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा यूनिवर्सिटी की वैलिडेशन। वो चेक करेंगे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, वो डॉक्यूमेंट में कोई कमी तो नहीं है, अकॉर्डिंग देयर एडमिशन क्राइटेरिया जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं क्या वो आपने सभी अपलोड कर दिए हैं। अगर उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आपको मेल करेंगे कि प्लीज़ कंप्लीट दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कीजिए और अपलोड करिए दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पर। अभी थर्ड पर आते हैं। थर्ड स्टेप होगा कि जब उन्होंने वैलिडेट कर दी आपकी फाइल कि हाँ आप अभी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो उसके बाद कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी वो चेक करने के लिए कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी कैसी है, आप कॉन्फिडेंट कैंडिडेट हैं, आपको कितनी की नॉलेज है मेडिकल फील्ड की। तो वो इजी होती है, रोमानिया में कोई डिफ़िकल्ट इंटरव्यू नहीं आती। अगर आपने वो इंटरव्यू क्लियर कर ली, उसके बाद जो आपका स्टेप होगा वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन भेज देनी है कि आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अभी आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे हमारी मिनिस्ट्री के पास, जो एक्सेप्टेंस लेटर, जो मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मैं कह दूं आपको, वो इशू करके देगी। और वो ये भी चेक करेगी कि जो आपकी इंडियन एजुकेशन है क्या वो रोमानियन एजुकेशन के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो आपका जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो नियर अबाउट 1 से लेके 1.5 मंथ तक, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फाइल आती है। जैसे मैं आपको बताऊं रोमानिया में बहुत सी यूनिवर्सिटी है, बट मिनिस्ट्री एक ही है जो आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करके देती है। तो सभी यूनिवर्सिटी जो एक जगह पर कलेक्ट होते हैं उनके डॉक्यूमेंट, तो उनको टाइम लग जाता है, वो 1 से लेके 2 मंथ्स तक भी कई बार ले लेते हैं आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करने के लिए। अगर आपने इंडिया से 12th की है तो मैं आपको बोलूँगी आपकी एजुकेशन जो है वो रोमानिया की इक्वल होती है। उसके बाद आती है टर्न ऑफ ट्यूशन फी। जब आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी के पास आता है तो वो आपको एक इनवॉइस इशू करके देंगे ऑफ ट्यूशन फी। तो ये ट्यूशन फी जो होती है, जैसे आपको बताया गया है कि इसमें ट्यूशन फी बहुत अफोर्डेबल है,
नियर अबाउट 8 से लेके 10 लाख तक। कई यूनिवर्सिटी की आप ये मान के चलिए कि 7.5 लाख तक भाई आपकी जो है ट्यूशन फी आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप और शनिगंज जोन की कंपेयर करेंगे तो इसकी जो ट्यूशन फी है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप इजीली अकोमोडेशन वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपको साथ में वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको कहीं भी उसकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लास्ट में आपका आएगा वीज़ा एप्लीकेशन। जब आपकी ट्यूशन फी उनके पास पहुंच जाएगी वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज देंगे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, और उसके बाद आपने फाइल करने जाना है एम्बेसी में। इसका कोई भी VFS नहीं होता, आपको डायरेक्ट एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आएगी, आपने जाना है और अपनी फाइल सबमिट करनी है। नियर अबाउट 10 से 15 दिन में आपका ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫॉर ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਸੈਪਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, यूपी बिहार, हिंदी पंजाबी ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 9ਵੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ 11ਵੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 12ਵੀਂ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਗੀ। 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੀ ਸਟੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਸਟੱਡੀ 9th ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰ ਲਈ, 10th ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ 11 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 11 ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6.5 ਬੈਂਡ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਤੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 150 ਯੂਰੋ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 200 ਯੂਰੋ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 250 ਯੂਰੋ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਰੋ ਪਾਸ CV। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਯੂਰੋ ਪਾਸ CV। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਲੈਟਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨੈਟ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਨ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਦਾ MEA ਤੋਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ
ਦੈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ MOI। ਜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ MOI ਲੈਟਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ MOI ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, 200 ਯੂਰੋ, 250 ਯੂਰੋ, 300 ਯੂਰੋ, 300 ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ट्यूशन फीस आऊगी 7,000 यूरो, 8,000 यूरो, 11,000 यूरो, वो 8 तो लैके 11,000 यूरो तक आऊगी। डिपेंड करता है यूनीवर्सिटी किहड़ी है। इंडिया दे विच भी जिहड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन्हां दी जिहड़ी ट्यूशन फीस है वो 11-11 लाख रुपये तक आउंदी है। तुहानूं ते अगली वीडियो तुहानूं दसदे हैं, बने रहो। तो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा कि मैं सिर्फ रोमानिया में ही क्यों जाऊँ। रोमानिया अगर शेनिगन है तो मेरे पास और भी बहुत ऑप्शन है। जैसे मेरे पास ऑप्शन होगा जर्मनी का, मेरे पास ऑप्शन है इटली का, मेरे पास ऑप्शन है पोलैंड का, है ना, बहुत सी ऐसी कंट्रीज का जो जिनमें मैं MBBS करने जा सकता हूँ। तो फिर मैं रोमानिया ही क्यों जाऊँ जो अभी शेनिगन जोन में आया है। तो उन्हीं का कंपैरिजन ही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ऑफ ट्यूशन फी। रोमानिया की जो ट्यूशन फी आती है वो आती है नियर अबाउट 7.5 से लेके 10 लाख रुपए मैक्सिमम। 10 लाख से बहुत कम यूनिवर्सिटीज होंगी जिनका 11 लाख होगा या 12 लाख होगा, बट आई थिंक नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनमें 7.5 लाख रुपए फीस आती है, जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो उसके बाद अगर मैं पोलैंड की बात करूं तो पोलैंड में जो फीस आएगी नियर अबाउट 12 से लेके 18 लाख रुपए तक आपकी जो ट्यूशन फी आती है, तो उससे तो ज़्यादा अफोर्डेबल फिर रोमानिया ही हुआ। उसके बाद हम जाएंगे इटली में। अगर मैं कहूँ कि इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके लिए आपको IMAT का स्कोर काफ़ी हाई लेवल का होना चाहिए, फिर ही आपको फीस जो है वो 2 से लेके 3 लाख आएगी। बट अगर आप इटली की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस आपको जाएगी 20 लाख रुपए 1 साल की। तो उससे तो अच्छा फिर रोमानिया ही है, वो भी तो शेनिगन जोन में आया। अगर आप रोमानिया से स्टडी करेंगे वो भी इक्वली वैलिड मानी जाएगी अगर आप और किसी शेनिगन कंट्रीज़ में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार इनको प्रैक्टिस करने के लिए उन कंट्रीज़ में भी लेके जाया जाता है, क्योंकि शेनिगन जो एक जोन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो इसका जो बेनिफिट, और नेक्स्ट जो मैं कंट्री आपको बताऊंगी वो है हंगरी। हंगरी में भी आप अगर स्टडी करने जाएंगे तो आपको 15 से 20 लाख 1 साल की ट्यूशन फी आ जाती है। उसके बाद जो सेकंड कंपैरिजन है वो है मेरा कि एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट। अगर आपने रोमानिया में अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी कोई भी फिज़िक्स का एग्ज़ाम, कोई भी आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं लेती, ना ही वो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम लेती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हंगरी की, जहाँ मैं पोलैंड की बात करूँ, तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम आते हैं जिसमें आपको बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री तीनों के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा, जिसके साथ आप compete भी कर लेंगे, बट उसके बाद आपको फ़ीस बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था। देन बात करूँगी इटली की। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि इटली फ्री स्टडी के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है, बट यहाँ प्लीज़ रुकिए आप, इसमें आपको देना पड़ेगा IMAT का एग्ज़ाम। IMAT के सेंटर्स ओपन होते हैं। जब आप इटली में अप्लाई करते हैं तो आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपने दिल्ली चूज़ करना है, दुबई चूज़ करना है, सऊदी अरबिया चूज़ करना है, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा फॉर IMAT। बट दिल्ली में बहुत कम जो है सीट्स होती हैं, नियर अबाउट 20 से लेके 40 तक जो सीट्स होंगी। इतने बच्चे हैं तो किस किस को इंडिया में सीट मिलेगी। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा किसी और कंट्री में। आपने एग्ज़ाम दे भी दिया, वो इतना टफ लेवल होता है कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं सभी को जज नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट भी होंगे जो इजीली क्लियर कर लेंगे, बट
मैं एक उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो आईमेट नहीं कर सकते या नीट नहीं दे सकते, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है रोमानिया, रोमानिया, रोमानिया। ठीक है, तो यही हम बार बार कह रहे हैं। थर्ड आ गया लिविंग कॉस्ट। अगर आप रोमानिया का कंपैरिजन पोलैंड, हंगरी और इटली से करेंगे तो इसका जो अकोमोडेशन चार्जेस होते हैं या इसका फूड का चार्ज होता है वो उनके कंपैरिजन बहुत कम है। आप हंगरी में रहने जाओ बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इटली में रहने जाओ बहुत एक्सपेंसिव है। बट जो रोमानिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, इन कंट्री में अफोर्डेबल लिविंग है। आप आसानी से यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ले सकते हैं जो बहुत कम मिलेगी। अगर आप बाहर भी रहते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मिलके रहते हैं, तो आपको नियर अबाउट 15 से 20 हज़ार एक ਮੰਥ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। 15 ਜੁਲਾਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਉਂਡ ਦੀ, ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਇਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 12-13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੋਸਟਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਲਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੱਸਤੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ 300 ਯੂਰੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ MOI ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे कि हमने आपको बताया रिगार्डिंग रोमानिया MBBS, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर रोमानिया MBBS तो आप किसी भी समय हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप हमसे बात भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं रिगार्डिंग रोमानिया स्टडी वीज़ा, रोमानिया MBBS। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया होया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू। ਤੇ ਜੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।